I want to share something which God has been working in my life and speaking to me. मैं आज ऐसा कुछ बांटने वाला हूँ जिसके द्वारा परमेश्वर मेरे जीवन में काम कर रहे हैं और बात कर रहे हैं. I have seen that the goal of my Christian life is to become more like Christ. अब मैं देखता हूँ कि मेरे मसीही जीवन का जो लक्ष्य है वो प्रभु यीशु मसीह के समान ज़्यादा से ज़्यादा बनना है. And I see that in Second Thessalonians. मैं देखता हूँ दूसरा थेसलोनिकियों Verse 14. Second Thessalonians chapter 2 verse 14. दूसरा थेसलोनिकियों दूसरा अध्याय उसका 14 वचन. It was for this he called you through our gospel, that you may gain the glory of our Lord Jesus Christ. जिसके लिए उसने तुम्हें हमारे सुसमाचार के द्वारा बुलाया कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा को प्राप्त करो. So I see that this is a calling for our life, that that we may gain the glory of Jesus Christ. मैं देखता हूँ कि हमारे जीवन की बुलाहट यही है कि हम प्रभु यीशु मसीह की महिमा को प्राप्त करें. So most of us have come to know Jesus Christ personally. हम सभी ने प्रभु यीशु मसीह को व्यक्तिगत रूप से जाना है. And our lives have been changed. और हमारा जीवन बदल गया है. God has changed us from darkness to light. हमें परमेश्वर ने अंधकार से ज्योति में बदला है. Okay, and given us joy and peace. और हमें शांति और आनंद दी है. Now, how do we progress in that? पर अब हम उसमें आगे कैसे बढ़ते हैं? So, what is the goal of our life? हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? So many people have some, if the goal is not certain, then we don't. Where there is a vision, we progress towards that. यदि हमारे पास मकसद या लक्ष्य होता है तो हम उसकी ओर बढ़ते जाते हैं. But where there is no vision, people perish. और जब कोई लक्ष्य नहीं होता है तो लोग नाश हो जाते हैं. That's what the word of God says. परमेश्वर का वचन यही कहता है. So to have a vision of our life, so sometimes we may feel that vision is that we may do some ministry. और कई बार हम ऐसे सोचते हैं कि हमारा जीवन का दर्शन ये है, लक्ष्य है कि हम कोई सेवकाई करें. Yeah, I should go and serve the Lord. मैं प्रभु की सेवा करूं जाकर. Or I should go and tell people about Jesus Christ. I should tell 10 people in this month. और हम ऐसे सोचते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम लोगों को कहें. Okay. So all these things we can think of such goals in our life. हमारे जीवन के ऐसे लक्ष्यों के बारे में हम सोच सकते हैं. But if you see the word of God and what the word of God says, जब हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है? that is the goal that we need to take. तो वही लक्ष्य को हमें अपनाना है. And if you look from Romans to Jude, where the teaching of the apostles and what that is, रोमियो से लेकर यहूदी तक हम देखते हैं जो प्रेरितों ने हमें सिखाया है. they're all teaching us so that we will become more and more conformed to the image of Christ. वो हमें सिखाते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु यीशु मसीह के चरित्र में उसके रूप में बदलते जाएं. And that the Holy Spirit will make us conform to His image so that we will be presented spotless and blameless. हमें पवित्र आत्मा जो है प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में बदलता जाएगा ताकि हम परमेश्वर के सामने निर्दोष और निष्कपट ठहरें. So here it says that we may gain the glory of our Lord Jesus Christ. यहाँ पे कहा गया है कि हमें प्रभु यीशु मसीह की महिमा को प्राप्त करना है. So what is the gaining of the glory? महिमा को प्राप्त करना क्या है? Gaining of the glory of Jesus Christ is to become like Him. प्रभु यीशु मसीह की महिमा को प्राप्त करने का अर्थ यह है कि हमें यीशु की तरह बनना है. In our character, हमारे चरित्र में, in our life, हमारे जीवन में, from day to day. प्रतिदिन. It starts from the home. हमारे घर से ही इसकी शुरुआत होती है. And then it starts outside. फिर उसके बाहर. Because if our life is not becoming more like Jesus, then whatever is our goal has got no value. यदि हमारा जीवन प्रभु यीशु मसीह के समान नहीं बन रहा है तो हमारा कोई भी लक्ष्य हो तो उसका कोई मूल्य नहीं होता. Our ministry will not have any value. हमारी जो सेवकाई है उसका कोई मूल्य नहीं होगा. So everything becomes
everything becomes, just a put on thing. सब कुछ जो है दिखाने वाली ऐसी ही चीजें हो जाती है। But if we seek the glory of Jesus यदि हम प्रभु यीशु मसीह की महिमा को खोजते हैं and in our life become changed more and more, और हमारा जीवन बदलते ही जाता है, then we don't have to worry about ministry. फिर हमें सेवकाई के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होती। Ministry will automatically come. सेवकाई अपने आप से ही आ जाएगा। If our life is becoming more and more changed to become like Jesus, यदि हमारा जीवन ज्यादा से ज्यादा प्रभु यीशु मसीह के समान बनने में बदलता जा रहा है, then God will start using us. तो फिर परमेश्वर हमारा उपयोग करने लगते हैं। That was the way Jesus was. प्रभु यीशु मसीह ऐसे ही थे। For the 30 years, he was not doing any ministry. पहले 30 वर्षों तक उन्होंने कोई सेवकाई नहीं की। Okay, 30 years he was spent. Only 3.5 years he had ministry. 30 वर्षों तक उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने 3.5 वर्ष ही सेवकाई की है। So we have an option before us whether we want to try to serve the Lord before we and not be conformed to His image. Is that the goal? या हमारे पास एक चुनाव है, प्रभु यीशु मसीह के समान बदलने से पहले ही हम परमेश्वर की सेवकाई करना चाहते, ये हमारा लक्ष्य है। So just want to encourage that, I've been encouraged about this in my life. मेरे जीवन में मैं इस बात से प्रोत्साहित हुआ हूँ That I have to just be faithful and be more and more changed into His likeness. जब मैं अपने जीवन में विश्वास योग्य बने रहता हूँ और प्रभु के समान ज्यादा से ज्यादा बनते जाता हूँ, And then God will start using us. फिर परमेश्वर हमारा इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। I've seen that in my own life that is happening. और मेरे स्वयं के जीवन में मैंने देखा है कि यही हुआ है। So, and we'll be surprised how much God can do in our life. और हम ये देख के बहुत ही चकित हो जाएंगे कि परमेश्वर हमारे जीवन में क्या क्या नहीं कर सकता है। So, when the goal is to become like Christ, जब हमारा लक्ष्य मसीह के समान बनना है, the thing is that we have various weaknesses. बात ये है कि हमारे जीवन में बहुत सारी कमी घटियां होती है। Okay? We have been forgiven of so many sins, हमें बहुत सारे पापों से क्षमा मिल चुकी है, but we still have so many weaknesses and sins. फिर भी हमारे जीवन में बहुत सारी कमियां हैं, पाप हैं। So we all know what our weaknesses are. हम सब जानते हैं कि हमारी कमजोरी क्या है। One of the common weaknesses is the way we speak to people. और आम रूप से जो कमजोरी है ये है कि हम किस तरीके से लोगों से बात करते हैं। We keep on hurting people. हम लोगों को चोट पहुंचाते जाते हैं। There is no grace in the way we speak. जब हम बात करते हैं तो कृपापूर्ण बात नहीं होती है। And so many other weaknesses are there. ऐसे बहुत सारी कमजोरियां होती हैं। We don't forgive others. हम दूसरों को क्षमा नहीं कर पाते। We find it difficult to forgive others even though God has forgiven us. भले ही परमेश्वर ने हमें क्षमा कर दिया है, फिर भी दूसरों को क्षमा करने में हमें मुश्किल होती है। We tend to feel jealous of people. हम लोगों के प्रति जलन रखते हैं। Okay, we know what is jealousy. आपको पता है कि जलन क्या है? When something good happens to others, we feel down. जब दूसरों के साथ कुछ अच्छा हो जाता है तो हमें अच्छा नहीं लगता। So these are all nature and weaknesses within us which is not Christ-like. ये सारे स्वभाव और कमजोरियां हमारे अंदर है जो कि मसीह के समान नहीं है। So as we desire to become like Christ, जैसे ही हमारे अंदर इच्छा होती है कि हम प्रभु यीशु मसीह के समान बने, God will reveal His glory. तब परमेश्वर अपनी जो महिमा है वो प्रकट करेंगे। God will reveal how Jesus was. परमेश्वर हमें ये प्रकट करके देंगे कि प्रभु यीशु मसीह कैसे थे। But this will happen only if we have a desire to become like Him. पर ये बात तभी होगी जब हमारे अंदर ये इच्छा होगी कि हम प्रभु यीशु मसीह के समान बने। See, we are here in the church we speak about these things. हमारी इस कलीसिया में इसके बारे में हम बात करते हैं। But how many of us have got this as an aim and goal to become like Christ? पर हम में से कितनों के ये लक्ष्य और मकसद है कि हम प्रभु यीशु मसीह के समान बने? Are we still engrossed in other things? क्या हम अभी भी दूसरी ही चीजों में उलझे हुए हैं? And in these weaknesses we are continuing in this, falling down and getting up. और ये जो गिरने में, ये कमजोरियों में क्या बार बार हम गिरते उठते रहते हैं? Okay, when we are falling down and getting up in our weaknesses and sins, जब हमारी कमजोरियों में, पापों में हम गिरते उठते रहते हैं, then we don't have the desire to become like Christ. फिर हमारे अंदर ऐसी कोई अभिलाषा नहीं होती है कि मसीह के समान बने। So we are always arguing and fighting with each other. हम हमेशा विवाद करते रहते हैं, तर्क करते हैं, लोगों के साथ लड़ते रहते हैं। Okay, or
or things like that, or we are, we are not able to control our eyes and we are lusting over the opposite sex. या तो फिर ऐसी हो सकती है कि हमारी आंखों के ऊपर हमें कोई नियंत्रण नहीं होता, तो हमारे विरोधी जो लिंग के लोग होते हैं उनसे हम आकर्षित होते रहते हैं। Then becoming like Christ is something very far off. फिर मसीह के समान बनना जो है बहुत दूर की बात हो गई, Okay, because we are still struggling. क्योंकि अभी भी हम संघर्ष कर ही रहे हैं। We are like children falling down and getting up. हम बच्चों के समान हो गए जो कि गिरते हैं फिर उठते हैं। So we cannot think about maturity. तो हम सिद्धता के बारे में सोच भी नहीं सकते। Becoming like Christ is to grow mature. और मसीह के समान बनना जो है सिद्ध बनना है। Okay, so we need to overcome this falling down things in our life. तो ये जो बार बार उठने की बात है, इसमें ये जो हमारे जीवन में, उससे हमें जो है जय पाना है। And the word of God promises us that we can become overcomers. और परमेश्वर का वचन हमें ये वायदा देता है कि हम जयवंत हो सकते हैं। So I want to share something about becoming an overcomer. मैं जयवंत होने के बारे में कुछ आपसे बांटना चाहता हूँ। If we are falling and struggling in our life in any area, यदि हम गिरते रहते हैं हमारे जीवन के कोई भी क्षेत्रों में, यदि हम अभी भी संघर्ष कर रहे हैं, this message will be of help to you. तो ये जो संदेश है आपके लिए बहुत ही सहायक होगा। Okay, so this is what I wanted to say. तो यही मैं कहना चाहता हूँ। If we are struggling in, and I believe that many of us are struggling in so many areas. और मैं विश्वास करता हूँ कि हम में से अधिकतर लोग जो है बहुत सारे क्षेत्रों में अभी भी संघर्ष कर रहे हैं। At least 1 or 2 areas, एक या दो चीज हो सकती है, if not more. यदि ज्यादा नहीं है तो। But the message in the word of God is that we can be overcomers. पर परमेश्वर के वचन का संदेश ये है कि तुम जयवंत हो सकते हो। A child who falls down is not able to, he's falling down and getting up, but which adult person is able to walk. एक जो बच्चा है वो गिरते रहेगा, फिर उठ के खड़ा होगा, फिर गिरेगा, बट एक जो सियाना व्यक्ति है, सिद्धता में जो पहुंच चुका है, वो चलेगा। God wants all of us to be able to walk. परमेश्वर चाहते हैं कि हम सभी चलने लग जाएं। There will be an occasional falling. तो हो सकता है कि कई बार गिर जाएं हम। As you walk, you may slip on, you may trip on one stone and fall down. हो सकता है जैसे कि हम चलते जाते हैं तो कोई पत्थर पे लगकर हम गिर जाएं। That everybody, it happens to everybody. तो ये बात सभी के साथ होती है। But my message right now is about overcoming those struggles, पर मेरा संदेश आज ये है कि उन संघर्षों पर जयवंत पाना, so that we can be people who walk. Sorry? So that we can be people who walk ताकि हम ऐसे लोग बने जो चलते हों, and who run. जो भागते हों। Then our desire will be now to become like Jesus. फिर हमारी जो इच्छा जो होगी वो मसीह के समान होना ही होगा। Okay? Then our only desire will become more like Jesus. फिर हमारी एक ही इच्छा रहेगी कि हम मसीह के समान ज्यादा से ज्यादा बने। So this message is for all of us to have that desire to become like Christ. तो आज जो ये संदेश है वो ये है कि हमारे अंदर एक इच्छा हो कि हम सभी मसीह के समान ही बने। As we do that, we will be a blessing. We'll be a blessing at home and church and other places. जब हम ऐसे करते जाएंगे तो हमारे घर में, हमारी कलीसिया में, बाकी जितनी भी जगह, हर जगह एक आशीष का कारण हम बनेंगे। We'll be people who will bring peace in every situation. हम ऐसे लोग होंगे जो कि अलग अलग परिस्थितियों में शांति लाते हों, Not confusion and trouble. गड़बड़ी या परेशानी लाने वाले लोग नहीं होंगे हम। So the first thing that I learned in my life एक चीज जो मैंने अपने जीवन में सीखी है, is that first thing that I learned in my life is that I cannot do it by myself. पहली बात जो मैंने अपने जीवन में ये सीखी है कि मैं अपने आप से ये नहीं कर सकता हूँ। So this is one thing, that being an overcomer is not by our power and our strength. तो जयवंत होना जो है हमारे सामर्थ से या हमारे ताकत से नहीं होता है। I learned this by an example in my own life. मेरे जीवन के एक उदाहरण के द्वारा मैंने सीखा है। Some of the things that I'm speaking, some of you have already heard. मैंने कुछ लोगों ने पहले से ये सुना होगा। Okay. When I was many years back, when I was having some responsibility in the church as a young person, एक जवान व्यक्ति होने के रूप में कुछ साल पहले मुझे एक जिम्मेदारी दी गई थी कलीसिया में। and I was discussing with my fellow brother about some things and
did some suggestion to him. और जो दूसरे भाई हैं उनके साथ हम सलाह मशवरा कर रहे थे और कुछ करने के बारे में कुछ सलाह मैंने उन्हें दी, But he was not accepting. पर उन्होंने वो राय ली नहीं। And then I used to feel bad about it. फिर मुझे उसके बारे में बुरा लगने लग गया। And then I started having bad thoughts about him. फिर वो जो भाई है उनके प्रति बुरे भावनाएं आने लगी मेरे अंदर। Then I said, it's not good to have bad thoughts, so Lord, help me to have good attitude towards him. फिर मैंने कहा कि प्रभु ऐसे एक मनोवृत्ति रखना अच्छा नहीं है उस भाई के खिलाफ, तो मेरे मन में अच्छी चीजें डाली है। So again, when I would meet and when we would talk, again the same process of he would not agree to my suggestions. फिर वापस से हम मिलते, फिर बातचीत होती और कोई राय में देता, वो मेरी राय लेते नहीं। And a wrong attitude would come towards him. फिर से वो जो गलत मनोवृत्ति है उनके प्रति मेरे मन में आने लगती है। And I tried my best not to have a wrong attitude, but always a wrong attitude would come. मैंने अपना उत्तम कोशिश किया कि वो जो बुरा मनोवृत्ति है उनके प्रति वो ना हो, फिर भी वो होता ही गया। So much so, after a period of time, I thought that I cannot have a good attitude toward this person. इतना ज्यादा ये बात हो गई कि मुझे ऐसे लगने लग गया कि ये भाई के प्रति जो है अच्छा मनोभाव मैं कभी रख ही नहीं सकता हूँ। In spite of praying and wanting to have a good attitude, when I would meet him, I would have a negative attitude towards him. प्रार्थना करके उनके प्रति अच्छे मनोभाव रखने के बजाय जब भी मैं उनसे मिलता तो बुरा एक मनोभाव मेरे अंदर आ So much जाता। so, I thought that I can love everybody else but this person. इतना तक मैंने सोच लिया था कि मैं सबसे प्रेम कर सकता हूँ, पर ये जो भाई है इससे मैं प्रेम नहीं कर सकता। When I had that thought, I cannot love this person, though I tried, but I can love others. At that time, somehow or the other, the next time I saw him, God gave me the grace to have a good attitude towards him. जब मेरे अंदर ऐसी भावना आ गई कि सबसे मैं प्रेम कर सकता हूँ पर इस व्यक्ति से नहीं प्रेम कर सकता, तो दूसरी बार कैसे नहीं पता नहीं मुझे ऐसे परमेश्वर ने मेरे जीवन में किया कि मुझे उस व्यक्ति के खिलाफ जो है अच्छे मनोवृत्ति हो गई। So I learned a lesson at that time मैंने एक पाठ उस दिन सीखा that with our own strength and our efforts, we cannot be an overcomer. अपने खुद के सामर्थ्य या ताकत के द्वारा हम जयवंत नहीं हो सकते हैं, But with the grace of God, we can become. पर परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हम ऐसे हो सकते हैं। That promise in Romans 6:14 रोमियो 6:14 में जो वायदा दिया गया है says, "For sin shall not be master over you, for you are not under law, but under grace." और तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। So, brothers and sisters, God's abundant grace is available for us भाइयों बहनों, परमेश्वर का जो बहुतायत का जो अनुग्रह है वो हमारे लिए उपलब्ध है to become an overcomer. ताकि हम जयवंत हो सकें। Okay? So, all we need to have is that attitude that I don't want to do this sin. पर हमारे अंदर क्या होनी चाहिए, ऐसी रवैया होनी चाहिए कि मुझे ये पाप करना नहीं है। Whether it is the lust of the eyes भले ही वो आंखों की लालसा हो or any other sin. या तो कोई और पाप हो, Whether it is the way we speak, भले ही ऐसा हो कि हम किस तरीके से बात करते हो, whether it is jealousy, या तो फिर जलन हो, whether it is unforgiveness, या तो फिर क्षमा नहीं करना हो, whatever is our struggle, कोई भी संघर्ष हमारा क्यों ना हो, if we say, Lord, I want to be free from this, यदि हम कहते हैं कि प्रभु मैं इसमें से स्वतंत्र या आजाद होना चाहता हूँ and I know by my efforts I cannot do it. और मैं ये जानता हूँ कि मेरे सामर्थ के द्वारा, यत्न के द्वारा ये मैं नहीं कर सकता हूँ। See, I learned that lesson that I cannot overcome with because I tried and I could not get it. मैंने इस पाठ को सीख लिया कि मैंने मेहनत की, कोशिश की, पर मुझसे मेरे सामर्थ से ये नहीं हो पाया। But all of us also, when we try, we find that we cannot be an overcomer by ourselves. हम सभी भी ये कोशिश कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, यत्न कर सकते हैं और देख सकते हैं कि हम अपने आप से जयवंत नहीं हो सकते हैं। But believing in the promise of God that sin shall not have dominion and trusting in that can make us an overcomer. यदि हम परमेश्वर के इस वायदे पर कि पाप हमारे ऊपर प्रभुता नहीं करेगा, उस पर विश्वास करते हैं और उस पर भरोसा करके चलते हैं, तो हम जयवंत हो सकते So हैं। that is called coming to a zero point. तो उसी को कहते हैं कि शून्य स्तर में आना। So we must be able to learn that lesson of coming to a zero point that we cannot do by ourselves. तो हमें इस पाठ को सीखना है कि हमें उस शून्य के स्तर पे पहुंचना है कि हम हमारे द्वारा कुछ नहीं कर सकते हैं। And also we must know that God can do it for us. और हमें ये भी जानना है कि परमेश्वर हमारे लिए वो कर सकते हैं। So this will help us in
praying for victory over our sin. तो ये हमारी सहायता करेगा कि हम प्रार्थना करें पाप के ऊपर जय पाने के लिए। Another thing which really, another wonderful promise which helped me and which helps me is 1 John chapter 5 verse 13 and 14 and 15. पहला योना 5वां अध्याय उसका 1 John chapter 5 verse 14 and 15. पहला योना 5वां अध्याय 14 और 15 वचन जिस वायदे ने मुझे सहायता किया है। I want to encourage all brothers and sisters to believe in this promise because it really helps us. मैं कहूंगा कि सारे भाई बहन इस वायदे पे विश्वास करें क्योंकि ये हमारी बहुत सहायता करता है। 1 John 5:14 and 15 says, "This is the confidence which we have before him, that if we ask anything according to his will, he hears us. And if we know that he hears us in whatever we ask, we know that we have the request which we have asked from him." पहला योना 5वां अध्याय 14 और 15। और हमें उसके सामने जो हियाव होता है वो ये है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो हमारी सुनता है, और जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वह हमारी सुनता है तो यह भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा वो पाया है। So, we pray for so many things, हम बहुत सारी बातों के लिए प्रार्थना करते हैं, but how many of us know that God has heard our prayer? हमें से कितने लोग ये जानते हैं कि परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना को सुना है। We ask for so many things, हम बहुत सारे चीज़ों के लिए मांगते हैं, but we do not know whether, we don't have the assurance that God has heard it. हमें ये निश्चय नहीं होता कि क्या हाँ परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना सुना है। We know that God can hear everything that we say. हम ये जानते हैं कि परमेश्वर हम जो कुछ भी कहते हैं वो सुनता है। Even unbelievers pray, अविश्वासी भी प्रार्थना करते but हैं, also God has heard their prayer. परमेश्वर ने उनकी भी प्रार्थना सुनी है। But whether God is answering that prayer is the main issue. पर समस्या ये है कि क्या परमेश्वर उनकी प्रार्थना का उत्तर देता है। So many prayers go up from this earth to God. इस पृथ्वी से बहुत सारी प्रार्थनाएं परमेश्वर की ओर जाती How हैं, many of it is being answered? उसमें से कितनों का उत्तर मिलता है। Okay. So this verse says, this is the confidence that we have, that we ask anything according to his will, he hears us. तो इस वचन में कहा गया है कि जो कुछ हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं हमारी सुनता है, उसकी इच्छा के अनुसार जो मांगते हैं वो सुनता है और हमें देता है। So it is not just a prayer that has just gone up and he has heard, but he's heard it. And now it says, and if we know that he hears it, we also have the request. That means he has also answered that prayer. और ऐसा नहीं कि हमारी प्रार्थनाएं जो है परमेश्वर ने सुना है, परंतु परमेश्वर ने वो सुना है और उस प्रार्थना का उत्तर भी दिया है। So this verse says that we pray anything according to his will, he hears it and he also answers. ये वचन ये कहता है कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जो भी हम मांगते हैं प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर वो सुनता है और उस प्रार्थना का उत्तर देता है। This verse and both these things have been help me to take any problem to the Lord. ये जो वचन है उसने मेरी सहायता किया है कि मेरी कोई भी समस्या हो वो मैं प्रभु के पास लेके जाऊं। I know that no sin will be able to overpower me. मैं ये जानता हूं कि कोई भी पाप मेरे ऊपर प्रभुता नहीं कर सकता। Just because of God's promises. ये परमेश्वर के वायदे के अनुसार है। Not because of my capability. ऐसा नहीं कि मेरी जो काबिलियत के अनुसार है, but because of God's promises. परमेश्वर के वायदे के द्वारा। And this verse says, so you can take this, maybe it's jealousy, maybe it's unforgiveness towards others, maybe we have the tendency to speak always hurting people. हो सकता है कि हम जो क्षमा करते हो या तो फिर जलन रखते हो, लोगों को अपने बातों के द्वारा चोट पहुंचाते ऐसी बातें हो, और the tendency not to control our eyes. या तो फिर ऐसा स्वभाव जहाँ पे अपनी आंखों पर नियंत्रण हम नहीं कर पाते हो। Pray to God. It's all that we pray of overcoming sin is according to his will. और ये बात परमेश्वर को बताए, परमेश्वर से प्रार्थना करे, परमेश्वर ये जितनी भी प्रार्थनाएं हैं वो सब परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है। I hope it is clear what I am saying. मैं आशा रखता हूँ कि मैं जो कह रहा हूँ वो स्पष्ट हो रहा है। Whatever we know to be sure is according to his will, let us have the confidence that he hears it and he answers it. जब हम जानते हैं, ये निश्चय रखते हैं कि जो कुछ भी हम मांग रहे हैं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है, तो ये भी याद रखें कि वो सुनता है, उसका उत्तर भी देगा। So we can thank God, Lord, you have heard my prayer and you have answered my prayer. हम ऐसे कह सकते हैं कि परमेश्वर धन्यवाद कि आपने मेरी प्रार्थना सुनी और आपने उसका उत्तर भी दिया। Now, practically, we may see that after some time. व्यवहारिक रूप में थोड़े समय के बाद हम वो देख पाएंगे। In fact, after we
believe this prayer, we will find a special grace upon our life. जब हम इस प्रार्थना पर विश्वास कर कर प्रार्थना करते हैं तो हम देखेंगे कि हमारे जीवन में एक खास रूप का अनुग्रह हमें मिला The है। tendency of not wanting to do those things. वो एक ऐसा स्वभाव आता है कि हम वो पाप को करना नहीं चाहते We हैं। may still fall, हो सकता है कि फिर भी गिरते हैं हम, but definitely the change will come. फिर भी निश्चय रूप से वो जो बदलाव है वो आएगा ही। So God wants us to become an overcomer. परमेश्वर चाहते हैं कि हम जयवंत हो जाएं Every area in our life. हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में। Okay? Maybe one or two are still left. हो सकता है हमें से एक या दो अभी भी बाकी हैं। You can say a tendency to be selfish. हो सकता है कि एक स्वार्थीपना का जो स्वभाव है। What is selfishness? स्वार्थीपना क्या है? Selfishness is only thinking about ourselves. स्वार्थीपन ये है कि हम सिर्फ हमारे बारे में ही सोचते हैं। I must be comfortable. मुझे आराम से रहना है। It doesn't matter if others in the house are uncomfortable or others in the church are uncomfortable. मुझे इस बात से कोई परवाह नहीं कि मेरे घर के लोग आराम से नहीं रह रहे या कलीसिया में जो है वो आराम से नहीं है। So one by one God will keep on showing us some things तो परमेश्वर एक एक करके हमें चीजें दिखाते जाएंगे and give us grace to be an overcomer. परमेश्वर हमें अनुग्रह देते जाएंगे कि हम जयवंत होते जाएं। And as we are walking this life, और जैसे ही हम इस जीवन में चलते जाएंगे we are wanting our own main desire is to become more like Christ. फिर हमारे जीवन की मुख्य जो लक्ष्य है या मकसद ये होगा कि हम मसीह के समान बने। In the way we speak to all people, सब लोगों से जिस तरीके से हम बात करते हो, sometimes people and the way we think, the way we speak, the way we act, all these things will start changing. और हम जिस तरीके से सोचते हैं, बात करते हैं, देखते हैं, सारी बातें जो है बदलती जाएंगी। And we will never be perfect till our death. That is for sure. हमारे मृत्यु तक हम सिद्ध नहीं हो सकते, ये तो निश्चय बात है। But there is a change from glory to glory. पर महिमा से महिमा की और बदलने की एक जो है बदलाव होते हैं। The Bible says the path of the righteous shines brighter and brighter. परमेश्वर का वचन कहता है कि जो धर्मी व्यक्ति का जो मार्ग है और ज्यादा से ज्यादा जो है प्रकाश में होते जाता है। Anybody knows which that verse is? Anybody knows that verse? Yes. कोई वचन को जानता है कहाँ पे The है वो? path of the righteous is like the light of dawn that shines brighter and brighter जो until the noonday. धर्मी का जो मार्ग है वैसा है जो कि ज्यादा से ज्यादा जो है प्रकाश में होते जाता है। Let's read that. Anybody knows? Many of us should know that verse. हमसे अधिकतर लोगों को ये वचन पता होना Come on, चाहिए। let me hear from here, this side. Which book of the Bible it is from? Huh? Proverbs. Okay. नीति वचन में, So Proverbs 4:18. नीति वचन 4 उसका 18। It says, but the path of the righteous is like the light of dawn that shines brighter and brighter until the full day. परंतु धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक अधिक बढ़ता रहता है। Is our path shining little brighter and brighter? क्या हमारा जो मार्ग है या चाल है बढ़ते जाता है, अधिकतर अधिकतर चमकते जाता है? So we can ask that question to each one of us. हम ये सवाल हम अपने आप से कर सकते हैं। Is my life going like this? Little slightly up. It may be very slightly also, but is it going slightly up? हम ये पूछ सकते हैं अपने आप से कि क्या मेरा जीवन जो चाल चलन है वो उसका अधिक से अधिक जो है ऊपर की तरफ जा रहा है, प्रकाश में होते जा रहा है? How can we know that? हम ये कैसे जान सकते हैं? You can look to the Lord and say, Lord, how is my life going? Is it going up or going down? हम प्रभु की तरफ देख सकते हैं और क्या पूछ सकते हैं कि प्रभु मेरा जीवन ऊपर की तरफ जा रहा है या नीचे की तरफ जा रहा है? And verse 19 says, और 19वां वचन कहता है, the way of the wicked is like darkness. दुष्टों का मार्ग घोर अंधकार में They है, do not know over what they stumble. वे नहीं जानते कि किससे ठोकर खाते हैं। So is it going brighter or is it going darkness? क्या वो प्रकाश में होते जा रहा है या अंधकार में चला जा रहा है? Are we quarreling more and more in our life now? क्या अब हम अपने जीवन में ज्यादा से ज्यादा झगड़ा करते जाते हैं Are we having a lot of arguments? या हम बहुत ज्यादा तर्क या विवाद करते रहते हैं? Are we unforgiving many people? या फिर हम बहुत सारे लोगों को क्षमा नहीं कर पा रहे हैं? Or is our slate clean that no
Not a single person is unforgiven. या तो फिर हमारा जीवन साफ है, ऐसा कुछ भी नहीं, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जिसको हमने क्षमा नहीं किया And हो। is forgiveness becoming quick? या क्षमा करना जो है बहुत तुरंत हो जाता है हमसे। When we ask God to forgive us, when we fall down, जब हम गिर जाते हैं और परमेश्वर से मांगते हैं कि परमेश्वर हमें क्षमा कर दे, how much time does He take? परमेश्वर को कितना समय लगता है? Does He say after 1 hour I'll forgive you? क्या परमेश्वर ऐसे कहते हैं कि 1 घंटे के बाद क्षमा करता हूँ? Then if God is waiting to forgive us after 1 hour, that 1 hour will be terrible for us because He has not forgiven us. यदि परमेश्वर 1 घंटे तक हमें क्षमा करने के लिए इंतजार करते हो तो हमारे लिए तो बहुत बुरी बात हो गई। Okay? But He forgives immediately. परंतु परमेश्वर हमें तुरंत क्षमा करते हैं, Immediate. तुरंत। What about us? हमारे बारे में क्या? When somebody does something hurt us or does something wrong, जब हमारे प्रति जो है कोई गलत कर देता है या तो फिर हमें चोट पहुंचा देता है, God wants us to be able to forgive immediately. तो परमेश्वर भी चाहते हैं कि हम भी उनको तुरंत ही क्षमा कर दें। Okay, it may because of our weaknesses, it may take a little time. हो सकता है हमारी कमजोरियों के कारण जो है थोड़ा समय लग सकता है, Maybe it will take 1 hour. हो सकता है 1 घंटा लग जाए, Maybe it will take 1 day. या तो फिर 1 दिन लग जाए, But at least let us forgive. फिर भी हमें क्षमा करना है कम से कम। As we learn this forgiveness, जैसे ही हमें क्षमा करने की बात को सीख देते हैं, 1 day and 1 hour will come down to lower and lower. Maybe it will come to about 5 minutes. फिर ये 1 घंटा 1 दिन की जो क्षमा करने की बात है वो कम हो जाएगा। हो सकता है कि 1 मिनट हो जाए, 5 मिनट तुरंत भी हो जाए। The more closer we become like Jesus, it will become faster like Jesus. और जितना हम यीशु के समान ज्यादा उस नजदीक बनते जाएंगे तो उतना ही जल्दी में हो जाएगा सब। And we'll be the happiest person when we forgive. जब हम दूसरों को क्षमा करते हैं तो हम सबसे ज्यादा खुशकिस्मत लोग हो जाते हैं। When we don't forgive others, that person also has done some harm, has a problem, but we also have a problem. जब हम क्षमा नहीं करते हैं तो जिसने हमें चोट पहुंचाई है तो उनको भी परेशानी होगी, हमारे अंदर भी परेशानी होगी। Some bitterness is lying in our heart. हमारे हृदय में एक जो कड़वापन है वो रहेगा। So this life is really wonderful, the life of Jesus. प्रभु यीशु का जीवन जो है बहुत ही अद्भुत है, And to become more and more like Him is a wonderful goal in our life. और यीशु के समान ज्यादा से ज्यादा बनना जो है हमारे जीवन का अद्भुत एक लक्ष्य है। So what happens is God fills us with light in our life, क्या होता है कि परमेश्वर हमारे जीवन में प्रकाश से भर देते हैं, and this light will shine to others. फिर ये जो प्रकाश है सब पे चमकती है। We don't need to keep on speaking. Just if we are living faithfully, the light will shine. हमें बात करने की जरूरत नहीं है, यदि हम विश्वास योग्यता से रहते हैं तो ये जो प्रकाश है वो चमकता ही रहेगा। By our mannerisms, by our behavior, the light will shine. हम जिस तरीके से बर्ताव करते, जिस तरीके का रवैया रखते हैं, उससे हमारा जो प्रकाश है वो चमकता रहेगा। And people will come closer to us फिर लोग हमारे नजदीक आएंगे because they will find some help. क्योंकि उनको कुछ मदद मिलेगी उससे। Just like people used to come after Jesus. जैसे कि प्रभु यीशु मसीह के पास लोग आते थे। Okay, so that's what is Christian life. तो यही मसीही जीवन है। Instead of that, we think that I should do this, I should do that, I make some plans to do this, to do that. That does not work. यदि इसके बजाय हम ये सोचते हैं कि मैं ऐसी योजना बनाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, तो वो काम में नहीं आएगा। Then what happens is, as we are faithful to Christ, that God gives us some burden for others. जब हम परमेश्वर के प्रति जो है विश्वास योग्य बने रहते हैं दूसरों के लिए, तो परमेश्वर एक बोझ हमारे मन में देते हैं। And that burden starts with praying for others. और वो जो बोझ है उसकी शुरुआत जो है दूसरों के लिए प्रार्थना करने के द्वारा शुरू होता है। Without praying, doing anything is of no use. प्रार्थना के बिना अगर कुछ भी हम करते हैं तो उसका कोई लाभ नहीं। So may God help each one of us to, as in my own life, I want to keep that goal before me. मैं अपने जीवन में ये लक्ष्य को अपने सामने रखना चाहता हूँ, To become more Christ-like. ताकि मसीह के समान ज्यादा से ज्यादा मैं बनूं। And I want to have that faith to be an overcomer in every area of my life. मेरे जीवन के हर एक क्षेत्र में एक जयवंत होने का जो विश्वास है, भरोसा है, वो मैं रखना चाहता हूँ। Amen. आमीन।